Hello students, welcome to Studies on Academy's YouTube channel. And I'm Rahul sir, and I'm going to help you with sums from compound interest. This is going to be a doubt clearing classes. बच्चों ये doubt clearing classes होने वाला है and we are going to solve doubts from compound interest chapter. So we are solving sums from Agarwal's book Understanding Mathematics, exercise number 2.2 compound interest, exercise number 2.2. Doubt question number 20. At what rate percent per annum compound interest would rupees 80,000 amount to 88,200 in 2 years? Interest being compounded yearly. Also find the amount after 3 years at the above rate of compound interest. Okay, fine. Question मिल गया. So we'll be getting principal as we're getting principal as rupees 80,000, amount as rupees 82,000. Fine. So next step, okay, period we are getting as 2 years. Fine. Let us take the R as our rate percent. Okay, we know the formula, that is A equals to P bracket 1 plus R by 100 to the power N. We know the amount. Okay, first let us rearrange it so it will be helpful for us. Clear? I hope it's clear till here. Okay, amount कितना है हम लोगों के पास? चलिए 80,000. It's 80,000. Then it comes, sorry, amount is 82,000. Principal is 80,000. 1 plus हम लोगों को 8 ढूंढना है. Let's cancel. Cancel. Don't cancel zeros. Okay. Let us cancel this with 1,000. Okay, students, here we are getting principal as 80,000, amount as 88,200. Fine. Period is 2 years already given. We need to find the rate percent. Rate ढूंढना हम लोगों को. So the formula which we are going to use is A equals to P bracket 1 plus R by 100 to the power N. In place of amount हम लोग लिखेंगे 88,200. बहुत लाइट है, चलिए पेन चेंज करते हैं, देखते हैं. चलिए P, in place of P we are going to write as 80,000. कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. N को रिप्लेस करेंगे 2 years से. Now let us bring it here. नीचे लाते हैं इसे. So what we are getting 1 plus R by 100 whole square. Let us cancel the zeros. 882 and 800. Further cancellation हो सकते हैं. ये हो जाएगा 400. ये हो जाएगा आपका 441. आना ही था क्योंकि यहाँ पर 2 है. यहाँ पर 2 है मतलब ये दो नंबर, जो भी नंबर यहाँ पर आएगा ऑब्वियसली किसी का स्क्वायर होना ही चाहिए था. तो हम लोग जानते हैं 400 किसका स्क्वायर है, 441 किसका स्क्वायर है. सो इट इज गोइंग टू बी 20 एंड 21 होल स्क्वायर. सो इट इज 1 प्लस R बाई 100 होल स्क्वायर. तो क्लियर हो गया. तो हम लोग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों 2 को हटा सकते हैं. हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 21 by 20, 1 plus R by 100. I'm going to solve the sums this side. Okay, स्पेस नहीं है. चलिए हम लोग लिख सकते हैं, इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं R by 100. 1 इस साइड से इस साइड शिफ्ट हो जाएगा. सो इट इज़ गोइंग टू बी 21 by 20 -1. उसके बाद आप लोग कैलकुलेशन खुद ही कर सकते हो. ओके, फिर भी मैं यहाँ पर इस साइड पे कैलकुलेशन कर देता हूँ. सो इट इज़ गोइंग टू बी R by 100
21 minus 20 divided by 20. So what we are getting is 1 by 20. So R equals to 100 by 20 and R as 5%. I hope it's clear. मैं फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ सम्स को. देखिए, according to the question it is given that at what rate % per annum compound interest would 80,000 amount to rupees 88,200. That means principal हम लोगों के पास 80,000 है, amount is already given, that is also 88,200. Clear. Next comes the period. Period कितना है? 2 years है. Rate ढूंढना है, to find the rate. So we are going to use the formula A equals to P bracket 1 plus R by 100 whole to the power N. जो वैल्यू पता है हम लोग उससे रिप्लेस करेंगे. क्या पता है? एक पता है दैट इज 88,200, P पता है दैट इज 80,000, R ढूंढना है, पीरियड पता था इसलिए हम लोग 2 लिखे हैं यहाँ पर. सो नेक्स्ट स्टेप वी आर doing the cross multiplication, we are bringing it down here, so it's becoming 88,200 divided by 80,000 equals to 1 plus R by 100 whole square. Let us cancel this. We are getting 441 and 400 which are both square numbers of 21 and 20. पहले से एक अंदाज़ा हो जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर 2 है, तो जो भी नंबर यहाँ पर रहेगा वो सारे स्क्वायर नंबर ही आना चाहिए. यहाँ पर अगर क्यूब होता तो यहाँ पर शायद क्यूब नंबर, शायद नहीं, यहाँ पर क्यूब नंबर आते हैं. तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? व्हाट वी आर गेटिंग एज 441 and 400. So 441 is square number of 21 and 400 is square number of 20. हम लोग इसे स्क्वायर लिखे हैं. नेक्स्ट स्टेप हम लोग स्क्वायर, यहाँ जो साइड में स्क्वायर है उसे कैंसिल कर देंगे. यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, मगर लिखना चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा. यहाँ पर होगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. जैसे हम लोग लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों 2 गायब हो जाएगा. यहाँ से हम लोग को मिलेगा क्या? 21 by 20 इक्वल्स टू 1 प्लस R by 100. वी आर ब्रिंगिंग 1 फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, सो वी आर गेटिंग R by 100 इक्वल्स टू 21 by 100 माइनस 1. उसके बाद कैलकुलेशन यहाँ किया गया है. क्या लिखे है? R by 100 इक्वल्स टू 21 माइनस 20 by 20, दैट इज 1 by 20. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड अल्टीमेटली वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ R as 5%. सो वी आर डन विद दिस सम. Let us move on to the next sum. Let us move on to the next question, that is question number 21. At certain sum amounts to rupees 5,292 in 2 years and to rupees 5,556.60 in 3 years at compound interest. Find the rate and the sum. Find the rate and the sum. Okay. तो यहाँ पर अप्रोच क्या होना चाहिए? देखिए, दो यहाँ पर क्या दिया है? अमाउंट दिया गया. at certain sum amounts to rupees 5,292 in 2 years and 5,556.60 in 3 years. दो अमाउंट दिया गया है. फाइन. और क्या दिया गया है? दोनों अमाउंट का टाइम पीरियड दिया गया है, दैट इज 2 years and 3 years respectively. Okay, now how to do this sum? First, let us start by writing down the statement. Amount, A for amount after 2 years. Amount of 2 years is 5,292. Obviously rupees लिखना ज़रूरी है, obviously. So 5,000. Amount after 3 years is rupees. Is it too light? Amount for 3 years is 5,556.60. Fine. Next thing what we are going to do is we are going to calculate difference. What is the difference between them? That is 5,556.50. इन दोनों का दो अमाउंट का डिफरेंस हम लोग को ढूंढना है. 5292 and we are getting it as let us calculate 5,556.50 minus 5292. What we can get? Okay, so that is 60 niche and what it is going to be 264. I did it mentally, guys. आप लोगों को calculate करना होगा and don't use the calculator obviously. Okay, so here we are getting here 264.60 is the interest on 5292 for first year. This is going to be the interest for first on 5292 or for first year.
264.60 is the interest on 5292 for 1 year. For 1 year. Okay, fine. Now let us calculate the rate with the help of this. So we are getting 264.60. Let us calculate 264.60 into 100 divided by 5292 into 1. Okay. So what we are going to get is as 5%. The rate is equals to 5%. Fine. Rate मिल गया. Amount हम लोगों के पास, and what we need to calculate according to the question, we need to calculate the principal now. Okay. I'm rubbing this part. Okay, मैं फिर कर रहा हूँ. Okay. Rate 5% हम लोग को याद रखना पड़ेगा. Okay. बच्चों देखो जगह कमी है तो ऐसे करना पड़ रहा है. नहीं है. We to calculate the principal, we are going to apply the same formula. A equals to P bracket 1 plus R by 100 to the power N. N की कितना है 2 years से. Amount is 5292 and okay, fine. P bracket 1 plus R हम लोग को 5% मिला था, so it's going to be 5 by 100 whole to the power your square, because time period 2 साल का था. 5292 P is going to be 100, 105, that is 21 by 100. इसे calculate करेंगे तो LCM हो जाएगा, तो 21 by 100 to the power square. Okay, to the okay, now we need to calculate P. So P is going to be 5292 20 into 20 divided by 21 into 21, and if you solve this, what we are going to get, so it is going to be 4,800. 4,800. 21 is 4441. If we cancel this and multiply by 20 to 20, so we are going to get 4800 as our answer, means as our principal. I hope it's clear. 4800. Done. Let us move on to the next sum. Continue with question number 24. According to the question, it is written, लिखा है, in what time will rupees 1500 yield rupees 496.50 as compound interest at 10% per annum compounded annually. 10% per annum compounded annually. At what time? So हम लोग को टाइम ढूंढना है. यहाँ पर क्या ढूंढना है? टाइम ढूंढना है. पहले हम लोग स्टेटमेंट लिख लेते हैं. क्या क्या है? प्रिंसिपल, बच्चों चेक कीजिए. प्रिंसिपल आप लोग लिखिए. प्रिंसिपल रुपीज 1500 और क्या दिया गया है? कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है. कंपाउंड इंटरेस्ट इज रुपीज 496. हाँ, रेट 10%. कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम ढूंढना है. यूजुअली हम लोग क्या सोचेंगे, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला हम लोग उसे अप्लाई करेंगे. नो, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं कि हो ही जाएगा वो चीज़. सो बेटर है हम लोग अमाउंट ढूंढ लेते हैं पहले, और अमाउंट का फॉर्मूला से हम लोग टाइम ढूंढने की कोशिश करते हैं. सो इट इज गोइंग टू बी P plus CI. सो इट इज गोइंग टू बी रुपीज, अच्छा लिख लेता हूँ, 1500 plus 496.50, that is amounts to rupees 1996.50 is the amount.
हम लोग ऐड कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या आता है। Principal is 1500, CI is 496.50. Let us add them. So we are getting this as our principal. Now let us put the formula. A equals to P bracket 1 plus R by 100 whole to the power n. A का वैल्यू कितना है 1196.50. P 1500 फाइन। एग्जैक्टली ऐसे ही सम आज हम लोगों ने किया। फर्स्ट सम था वो था, और यहाँ पर 1996.50 इक्वल्स टू 1500 1 प्लस R by 100. R is 10 by 100 and here that is n. We need to find the n. Okay, let us do the cross multiplication. हम लोगों को क्या मिलेगा 1996.50 divided by 1500 bracket 1 plus 10 by 100 whole to the power n. फाइन, यहाँ पर डेसिमल हटा देते हैं। So we are going to get 1996.50 divided by 1500 और 20 आ जाएगा क्योंकि लोग डेसिमल हटाए तो 100 से मल्टीप्लाई किया गया। So we are getting this. Okay, fine. कुछ कैंसलेशन हो सकते हैं। यहाँ पर पहले एडजस्ट कर लेते हैं कितना आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो आएगा यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं पहले, क्योंकि यहाँ पर जो आएगा एग्जैक्ट सेम चीज़ यहाँ पर भी आने वाला है। हम लोग उसे लाना है, हम लोगों को देखते हैं अंदर क्या सा होता है। यहाँ पर 0 0 कैंसिल, so it is going to be 10 11 by 10. सो यहाँ पर जो भी आएगा रेशियो दैट इज गोइंग टू बी 11 by 10. पावर चेक करना पड़ेगा, हम लोग पहले देख लेते हैं कितना। सर ऑब्वियसली यहाँ पर 1500 से ये कैंसिल हो सकता है। 15 150 से कैंसिल कर सकते हैं। 0 0 पहले कैंसिल कर देते हैं, 15 कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज गोइंग टू बी ओके फाइन 1331 और नीचे आ जाएगा 15 से अगर कैंसिल करेंगे तो 1011 by 10 whole to the power n. सो जनरल आइडिया हो गया है कि क्या हो सकता है। So it is going to be obviously 11 cube is 1331 and 10 cube is 1000. So it's clear कि टाइम क्या हो गया। Value of n is what? Value of n is 3. So time is 3 years. Clear students? Okay, let me explain it once more. Principal कितना है 1500. Compound interest is 496.50. Rate is 10%. Amount formula we need to calculate the amount first, क्योंकि अगर compound interest के formula से हम लोग अप्रोच करेंगे सम्स को तो सम्स complicated हो सकता है। तो let us make it simple. Amount is equals to P plus CI. P कितना है that is rupees 1500. CI कितना है 496.50. दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 1996.50. डन। फॉर्मूला क्या है अमाउंट का? A इक्वल्स टू P ब्रैकेट 1 प्लस R by 100 होल टू द पावर n. लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. ओके, लेट अस पुट द वैल्यूज. अमाउंट है 1996.50, प्रिंसिपल 1500 और यहाँ पर 1 प्लस 10 by 100 होल टू द पावर n. करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर अपने इम्प्लाइड साइन नहीं दिए, देना ज़रूरी है क्योंकि इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। ओके, 1996.50 डिवाइडेड बाई 1500 और यहाँ पर है 1 प्लस 10 by 100 0 0 कैंसिल होल टू द पावर n. तो यहाँ पर हम लोग कैल्शियम करेंगे तो हम लोग एडजस्ट करके मिलेगा 11 by 10 होल टू द पावर n. यहाँ पर 11 by 10 आ गया तो हम लोग को अंदाजा हो गया कि यहाँ पर क्या आ सकता है। पहले 0 0 कैंसिल करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग को 11 by 10 के पावर्स में कुछ हम लोग को लाना होगा। हम लोग ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे 15 से यहाँ पर देखा हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 0 है। यहाँ पर मुझे 1000 लाना है क्योंकि यहाँ पर 10 है। 100 ऑब्वियसली नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऊपर नीचे ऐसे एक नंबर से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे ताकि हम लोगों को 1000 मिल जाए नीचे। तो ऑब्वियसली 15 से करेंगे। जैसे 15 से किया हम लोगों को ऊपर नतीजा रिजल्ट मिल गया। नतीजा क्या निकला 1331 हम लोगों को मिल गया, नीचे आ जाएगा 1000। तो ये क्या है 1331 इज एक्चुअली 11 क्यूब एंड 1000 इज 10 क्यूब। तो हम लोग लिखेंगे 11 by 10 होल टू द पावर 3 इक्वल्स टू 11 by 10
whole to the n. So n is equals to 3. So we're getting the value of n as 3. Clear? जैसे कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों. Let us move on to the next sum. Let us continue with the next sum. According to the question, okay, question number is 27. According to the question, a sum of money is involved at compound interest payable annually. Okay, listen carefully. A sum of money is invested at compound interest payable annually. The interest in two successive years. The interest in two successive years is rupees 225 and 240. Rupees 225 and rupees 240. Find the rate of interest. Next, original sum. Then the interest earned in the third year. Fine. बिफोर डूइंग सम ये सम करने से पहले हम लोगों को कुछ जानना होगा. बुक में ही है मगर हम लोग उसे इग्नोर कर जाते हैं. पहले हम लोग उसे पढ़ेंगे, उसे समझेंगे, उसके बाद हम लोग ये सम करेंगे तो ये आसान हो जाएगा. बुक में ही है आपका पॉइंट नंबर 2.21. मेरे बुक में तो पेज नंबर 48 में है. यहाँ पर जो पार्ट है वहाँ पर लिखा है इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट रिमेंबर द फॉलोइंग. मैं एम एल अग्रवाल जी के बुक से पढ़ रहा हूँ. तो यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 4 है, ठीक है, एग्जाम्पल्स के आगे वाले जो पार्ट है जहाँ पर 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट पॉइंट्स दिया गया है फॉर्मूला के साथ, कैसे करना है, अप्रोच कैसे लेना है, मैं उस पार्ट से पढ़ रहा हूँ. ये हम लोग इग्नोर कर जाते हैं. यहाँ पर दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड कन्वर्जन पीरियड is more than compound interest of first conversion period. Clear? And conversion of second conversion period minus compound interest of first conversion period is equals to simple interest on the interest of the first conversion period. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. Compound interest of second conversion period is more than compound interest of first conversion period, and compound interest of second conversion period minus compound interest of first conversion period is equals to simple interest on the interest of the first conversion period. मतलब अगर 2 साल दिया गया है, ठीक है, 2 साल दिया गया है, 2 साल इन द सेंस 2 टाइम पीरियड दिया गया है, और ऑब्वियसली ये 2 टाइम पीरियड जो होगा वो होगा कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का होगा. कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स होना चाहिए. 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास है तो जो सिंपल इंटरेस्ट दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद, आई एम रिपीटिंग, अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है और कुछ नहीं है साथ, मतलब टाइम छोड़कर कुछ नहीं है, तो ऐसे मौके पे हम लोग क्या करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर और कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द नेक्स्ट ईयर, ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द नेक्स्ट ईयर, फर्स्ट और नेक्स्ट जो भी 2 दिया गया है रेस्पेक्टिव ईयर्स के, उन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे जो वैल्यू निकलेगा, दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड. मतलब फर्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का ऊपर, फर्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर अगर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाए तो एग्जैक्टली सेम वैल्यू निकलेगा. क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ चीज़ को. अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को एक जो वैल्यू मिलेगा वो एक्चुअली सिंपल इंटरेस्ट होगा फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड का. फर्स्ट पीरियड 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर दिया है, फर्स्ट जो ईयर का है उसका सिंपल इंटरेस्ट हम लोग को मिलेगा. अगर 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया और 5 साल का दिया गया है तो हम लोग जब सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हम लोग को वैल्यू मिलेगा वो एक्चुअली होगा सिंपल इंटरेस्ट जो 4 साल था, पहले वाला जो साल था उसका हम लोगों को क्या मिल जाएगा, हम लोगों को उसका सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा. क्लियर? नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सम. Compound interest of second conversion period is more than the compound interest of first conversion period. अगर सेकेंड कन्वर्जन पीरियड का कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड से, फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड के कंपाउंड इंटरेस्ट अगर ज़्यादा होता है तो दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे जो आंसर निकलेगा
वो एक्चुअली सिंपल इंटरेस्ट होगा फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड का। क्लियर? मतलब अगर दो कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है और दोनों का अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्रोवाइडेड कि दूसरा वाला का कंपाउंड इंटरेस्ट पहले वाले से ज़्यादा होना चाहिए, और दोनों का दो कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो आंसर हम लोग को मिलेगा वो एक्चुअली सिंपल इंटरेस्ट होगा। दो कन्वर्जन पीरियड में जो जो छोटा है, जो पहला कन्वर्जन पीरियड है, उसका सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों को मिलेगा। क्लियर? आई एम रिपीटिंग इट वंस मोर। अगर दो कन्वर्जन पीरियड दिया गया है, प्रोवाइडेड सेकेंड कन्वर्जन पीरियड का कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड से ज़्यादा हुआ, और अगर हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो एक्चुअली सिंपल इंटरेस्ट होगा फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड का। फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड का क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट होगा। जैसे 4 साल और 5 साल दो दिया गया है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 4 साल और 5 साल दिया गया, अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट को, 4 साल का इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट और 5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैं बोर्ड में दिखा रहा हूँ, अगर 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग के पास और आपके पास 5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो दोनों को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आंसर हम लोगों को मिलेगा वो एक्चुअली होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एक्चुअली क्या होगा? वो एक्चुअली सिंपल इंटरेस्ट होगा। किसका? इस कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट होगा। इस कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट होगा। क्लियर? इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके हम लोग ये वाला सम्स करेंगे। यहां पर और अच्छे तरीके से लिखा गया, नेक्स्ट पार्ट में लिखा गया कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द nth कन्वर्जन पीरियड is equals to amount after n conversion period minus amount after the n1 conversion period. Clear? Exactly ये वाला हम लोग आइडिया हम लोग कहाँ इस्तेमाल किए थे? जो आज के जो वीडियो में जो हम लोग सेकेंड सम किए थे उसमें हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग इस्तेमाल किए थे। अगर दो कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के अमाउंट भी दिया गया है तो दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड, nth कन्वर्जन पीरियड का हम लोग क्या मिलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, और उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? रेट निकाल सकते हैं। मैं फिर से ये वाला पॉइंट दोहरा रहा हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द n कन्वर्जन पीरियड इज इक्वल्स टू अमाउंट आफ्टर n कन्वर्जन पीरियड माइनस अमाउंट आफ्टर n माइनस कन्वर्जन पीरियड। क्लियर? दोनों को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो nth कन्वर्जन पीरियड का हम लोगों को क्या मिल जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। इस टेक्निक को हम लोग सम नंबर जो सेकंड सम था आज का, हम लोग उसमें इस्तेमाल किए थे। ओके, लेट अस मूव ऑन टू दिस सम, दैट इज सम नंबर 27। सो लेट अस राइट इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर equals to rupees 225. Next, compound interest for the second year is equals to rupees 240. हम लोग जानते हैं, अगर हम लोग अभी क्या पढ़े कि क्या दैट दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। सो सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 225 हम लोग लिख सकते हैं रुपीज 240 माइनस 225 हम लोग लिख सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 225 इज इक्वल्स रुपीज 240 माइनस 225. So we are going to get it as rupees 15. Now let us calculate rate. Rate calculate कर सकते हैं हम लोग. How? We know the value of simple interest, that is 15 into 100 on
तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 225 टाइम ऑब्वियसली 1 ईयर। तो कैलकुलेट करते हैं, हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो, लिख सकते हैं 15 15 ये कैंसिल, तो इट इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली 100 by 15, दैट इज 20 by 3। फिर कैलकुलेट करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी 2 by 3%, 2 by 3%। हम लोग को रेट चाहिए था, हम लोग को रेट मिल गया, इतना आसान था बस। नाउ वी नो दैट सम इज, वी नो, लोग लिखेंगे वी नो दैट sum equals to SI into 100 divided by R into T. So SI is 225 into 100, (20 by 3) into 1। रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये 3 कहाँ आ जाएगा, यहाँ तो नहीं रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा। और कैलकुलेट करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी 225 into 100 into 3 by 20 into 1। So what we are going to get it as get the 2 cancel, it's going to be 3375 as our answer. Okay, so we're getting sum as 3375, 3375, the principal. Okay, now let us calculate the amount calculate करेंगे, सबको ऐड करेंगे, so it will be rupees, so amount is going to be rupees 225 plus 225 plus 240 plus 3375। जो अगर इसे ऐड करेंगे तो 5 5 10 0, then 7 4 5 1, it will be 4, it will, then it's going to be 8, and so it will be 3840, 3840, clear? Next part is interest earned in the 3rd year. So for that I need to rub this part. Okay, अगर आपको कॉपी कर रहे हो तो जल्दी से कॉपी कर लो, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी से ले लो। मैं थोड़ा सा ही रख के, हम लोग को सिर्फ इंटरेस्ट ढूंढना था। सो आई प्रिंसिपल हम लोग को मिल गया, दैट इज 3840 20 into 1 by 100 into 3, that is your 256। यहाँ पर अमाउंट के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, और कितना हो रहा है देख रहे हैं, दैट इज 3840 into 20 into 1 by 100 into 3, so we are going to get 256 as our answer। so thank you students, मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली डाउट क्लियरिंग सेशन में। ओके, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।